Welcome, dear listeners and viewers. Ghost Incorporated welcomes you to a new series, The Mysteries of the Planchet. कौन है pencil के पीछे? Planchet possibly became very popular in the 19th and the early 20th century. To be able to connect to a departed soul is a desire of many newly bereaved families. Strangely, it is said that spiritualism gave rise to the concept of planchets. Very often, the Ouija board was used. Now, the Ouija board is like a small triangular board which has two posters on it at 2 points and a pencil at the third point. So that makes writing on paper a little easier. Now, with just the touch of a hand or a finger, the board moves and it is set to write automatically. But of course, later on, people have devised their own ways of doing planchet. Many families did it religiously, and the church or the religious leaders, they spoke against the culture or the practice of planchet. But अपनों को खोने का दर्द बस वही जानते हैं जिन्होंने खोया है अपनों। तो आज हमारे साथ फिर हैं हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट डॉली। डॉली, welcome to Ghost Incorporated's channel, and we are very happy to have you here. How are you? And, I'm good, and I'm so glad that you have invited me once again to this wonderful platform. I'm so personally interested in this Ghost Incorporated program because I have been reading things about ghosts in the past. I have been interested in spirits also to a certain extent. So I always track the program regularly, and I love being a part of it. Thank you so much. So this is a new effort. Planchet के बारे में क्या बता सकती हैं आप? आपका क्या ख्याल है प्लांचेट के बारे में? मैं तो देखिए, अगर आप मेरे से पूछें, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, बट आई बिलीव इन दीज थिंग्स. आई हैव अ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, बट आई एम नॉट एन एरोगेंट साइंस स्टूडेंट. I believe in these. I feel science has not been able to prove everything around this universe. तो ये मेरा विश्वास है, it's personal. और आज मैं आपके साथ I will try to share a few incidents which are very personal to my family. And since they are very personal, my family was not wanting to share the names. So I did not share the Yes, we understand. I would not also share the name of the city where it took place. So I've changed that. But then it's a fact that all this happened. Okay. Right? So should I start sharing my experience? Absolutely. आप प्लीज हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा डोमेन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. So please go ahead. अब ये घटनाएं शेयर करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि ये मेरी सारी सुनी हुई घटनाएं हैं, क्योंकि जब ये हुआ था तब मैं थी ही नहीं. I was not there at that time because this happened in the year 1943 onwards. तो ये बहुत पुरानी घटना है, लेकिन उन दिनों में ये घटना मेरे ससुराल के तरफ से हुई थी, उनके नेबर्स में हुई थी, और मेरे ससुराल इलाहाबाद के रहने वाले हैं. Okay. I again remind you, I've changed the places, so I won't like to make actual places. तो वो इलाहाबाद के रहने वाले थे, और मेरे सासू माँ की जो मदर थी वो वहीं की लड़की थी, उनकी शादी वहीं हुई थी, उनका बहुत बड़ा परिवार था, और मेरे सासू माँ बहुत भाई बहन थे, आपस में काफी भाई बहन थे. My husband had many mamas. He had 3 masis and he had around 5 or 6 mamas. तो ये उनकी परिवार की एक जुड़ी हुई घटना है.
And I'm talking about the year 1943 when so-called India was very disturbed. It was pre-independence era. You can understand Mahatma Gandhi ka march was on full swing. Britishers nahi ja rahe the, and so-called Pakistan ke log, there was a tendency to separate, and a lot of things were going on, and it was a very disturbed time at that time. Good. And your mother-in-law must have been a very young girl at that point in time. Girl, yes, she was a girl at that time. और मैंने ये बातें उन्हीं के भाई से सुनी है, यानी मामा जी से सब सुनी है, जो कि इन घटनाओं में खुद प्रेजेंट थे, वो वहां थे. अच्छा. और वो बाद में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में गए, एंड ही बिकेम अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ. तो ये जो पूरी बातें जो मैंने उनसे सुनी हैं, it's a man who is very qualified. He had a huge scientific bent of mind, but the things which happened and he saw, he told me कि Dolly, जो मैंने देखा, it forces you to believe that this is happening. So this is, the way I have heard. अब ये घटना involves a gentleman who was in the Indian Civil Services in the year 1943. और ये gentleman मेरे हस्बैंड की जो नानी माँ है, उनके बहुत नेबर थे, मतलब दोस्त थे, नेबरहुड में रहते थे, और इनके बहुत दोस्त. तो ये उनका परिवार से जुड़ी हुई घटनाएं हैं. इस जेंटलमैन के 3 बेटे थे, 3 sons, and he had 4 daughters. उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी, वो मेरे सासू माँ के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी. They were classmates. तो इनके जो बड़े बेटे थे, वो उन दिनों में 1943 में he was a captain in the navy. जो मिडिल बेटे थे, जो मझले बेटे थे, वो बाद में डॉक्टर हो गए और उन्होंने कलकत्ता में प्रैक्टिस की, और वो बहुत नामी डॉक्टर थे. उनकी कुछ साल पहले मृत्यु हुई. Okay. और जो it was an educated family. Absolutely. एंड जो तीसरे बेटे थे, वो इंडियन एयरफोर्स में चले गए बाद में, और वहां पे वो स्क्वाड्रन लीडर बने, और उन्होंने 1960s की जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया. उसमें उस वॉर के चलते कालीन उनका वो ही वाज डिक्लेयर्ड एज अ मिसिंग पर्सन. वो लौटे नहीं उस वॉर. So this is all, why I'm mentioning this, because these people will be there in the story which I tell you, the facts which I tell you. Okay. Now, so I think everybody has understood the family which I am relating, that is husband and wife. Husband ICS officer, 3 बेटे, पहला कैप्टन इन द नेवी, दूसरा डॉक्टर बाद में बना, तीसरा एयरफोर्स में गया, और 4 बेटियां. Now, when I talk about the eldest son, the incident related to the eldest son, जो कि कैप्टन इन द इंडियन नेवी थे, उनकी 1943 में यानी 1943 में शादी फिक्स हुई. खुशी की बात थी. एवरीबडी वाज वेरी ग्लैड अबाउट इट कि पहले बेटे की शादी फिक्स हुई है. मेरे नानी माँ के घर में भी न्योता आया कि इस महीने में उसकी शादी है. सो एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी अबाउट द होल थिंग. नेचुरली घर में पहली बहू आएगी. अब अनफॉर्चुनेटली द बॉय कॉन्ट्रैक्टेड टाइफॉइड अ फ्यू वीक्स बिफोर हिज वेडिंग. यस. और आप जानती हैं कि उन दिनों में उतनी अच्छी उम्दा ट्रीटमेंट नहीं होती थी, उतनी उम्दा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होती थी. Typhoid is a very lingering disease anyway. Right. और उनके बेटे की हालत थोड़ी बिगड़ती चली गई, और बिगड़ते बिगड़ते ऐसा एक टाइम आया जबकि बेटा समझ गया कि he may not be able to fight back. And when he realized that, one fine evening, while lying down on his bed, he spoke to his father very privately. वो अपने पिताजी का एक बहुत ही प्राइवेट शौक जानता था. पिताजी तो ICS ऑफिसर थे, उनका एक बहुत पर्सनल शौक था. He had one personal interest. He used to read a lot about spirits. He used to read a lot about Planchet and Tantrics. He was very much into it as far as his pastime was concerned when he was free. तो ये बड़े बेटे ये सब जानते थे.
तो बड़े बेटे ने पिताजी को थोड़ा अकेले में कहा कि पिताजी शायद आई वोंट बी एबल टू कम बैक, मैं जा रहा हूं, तो अगर मैं सच में चला गया, आप मेरा एक काम करिएगा, थ्रू योर नॉलेज, थ्रू योर whatever you have read so many years, अगर सच में आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकें एज अ स्पिरिट, आई विल रिस्पॉन्ड, आई विल रिस्पॉन्ड। ये पिताजी और बेटे में ये बात हुई थी। And this was a very private conversation. Very private conversation which we came to know. I came to know much later. Naturally, I was the नातबू of the family. मैं वहाँ उनके नाती की वाइफ थी, मैं नानी माँ के नाती की वाइफ थी, तो मुझे तो बहुत सालों बाद पता चला, लेकिन मेरे सासू माँ को ये सब काफी साल पहले से बताया गया कि ऐसा हुआ। तो ये इस सब के दौरान बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। एंड वंस ही पास्ड अवे, पिताजी वाज वेरी अपसेट, उनको अच्छा नहीं लग रहा था इलाहाबाद में। तो ऐसे करते करते समय बीतता गया और हठात से उनका एक ऑफिशियल टूर निकला, क्योंकि नेचुरली ही वाज अ डीएम इन दोज डेज ऑफ अ ह्यूज पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड उनको भेजा गया नेपाल। अच्छा। और जब नेपाल भेजा गया तो वहां पे उनको काफी दिनों का दौरा करना पड़ा। तो जब वो नेपाल में थे तो एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिनसे वो बहुत खुले दिल बात करने लगे। होता है ना जिंदगी में, आप कभी ऐसे से मिलते हैं जिससे आप बहुत दिल खोल कर बात कर सकते हैं। हाँ, वो तो एक केमिस्ट्री है। ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप उनके कोई बहुत करीब रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। He could open his heart with this man. अब ये व्यक्ति कौन था मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने सुना कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से बात की जो कि जिसके साथ उनका एक लिंक तैयार हो गया था। तो वो he started opening his heart to this man and he mentioned his son's death. He must have been a devastated person at that point. Absolutely. तो ये बात करते करते उस व्यक्ति को इन्होंने कहा कि देखो यार, ऐसा कुछ अगर मैं कर सकूं कि आई कैन टॉक टू माई सन एटलीस्ट वंस, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम वेरी बैडली एटलीस्ट वंस। ऐसे बोलते बोलते उस व्यक्ति ने, एंड यू नो दिस कॉन्वर्सेशन प्रॉब्ली वाज गोइंग ऑन फॉर डेज, दे वर मीटिंग, टॉकिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ऐसे करते करते उस व्यक्ति ने इन भाई साहब से कहा कि देखिए, मैं ऐसे एक आदमी को जानता हूं जो कि हम लोगों को एक तांत्रिक महोदय के पास ले जा सकते हैं नेपाल में, तेराई रीजन में, जो कि बहुत ही फॉरेस्ट में, घने जंगलों में रहते हैं। That तांत्रिक यूज्ड टू लिव देयर, स्टे देयर। तो ये जेंटलमैन बहुत इंटरेस्टेड हो गए। अब देखिए, जिसके मन में ऐसी आशंका हो कि आई वांट टू टॉक टू माय सन, एंड तो कुछ भी करेगा। यस, मेंटली यू आर वेरी वीक, तो आपको जो भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा आप हाँ बोल देंगे। लेकिन डॉली वो तो पहले से प्लान चिट करते थे शायद, जैसे आपने बताया। करते थे या नहीं उतना मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वो पढ़ते बहुत थे। अच्छा, प्रैक्टिस नहीं किया, थियोरी प्रैक्टिस का मुझे पता नहीं है, दैट इंफॉर्मेशन आई डोंट हैव। तो ये व्यक्ति उनको उस तेराई जंगल में ले गए। द ICS ऑफिसर वाज वेरी इंटरेस्टेड, वो इस व्यक्ति के साथ चले गए। तो जब ये लोग वहां पहुंचे तो उन तांत्रिक महोदय को पहले से ही इंफॉर्मेशन भेजा गया कि ये साहब आ रहे हैं, बिकॉज ही वाज ऑन अ वेरी हाई पोस्ट एंड नेपाल गवर्नमेंट के साथ उनका उठना बैठना था, तो नेचुरली थोड़ा VIP ट्रीटमेंट से उनको ले जाया गया। तो जब वे वहां पहुंचे पायलट कार्स वाज लेके, तो तांत्रिक महोदय उनको अपने कुटिया में ले गए, अंदर दो स्मॉल चेम्बर्स वेयर दे लिव इन कॉल्ड कुटिया, कुटिया में ले गए। तो वहां पे जाकर बैठाया, बातचीत जब शुरू हुई और तांत्रिक जी को जब सब बोला गया तो तांत्रिक जी को बहुत दुख हुआ सुन के। और जब उन्होंने देखा कि इस इंसान का जो व्यक्तित्व है बहुत ऑनेस्ट है एंड वेरी रियल वे ऑफ आस्किंग द हेल्प, तो तांत्रिक महोदय को बहुत ही, माने ही वांटेड टू हेल्प द मैन एंड ही सेड कि आई विल हेल्प यू मीट योर सन वंस, आई विल डू दैट फॉर। तो ये इसके बोलने के बाद एक मीटिंग फिक्स हुई। Those details I really don't know, but then this gentleman, the ICS officer, was called at a particular time to the chamber, to that
जंगल में जो छोटी सी जगह है जहाँ ये तांत्रिक महोदय रहते थे, वहां उनको बुलाया गया और तांत्रिक महोदय ने बाकायदे उनके सामने एक रिफ्लेक्शन लाके खड़ा किया. उनके बेटे का. No, listen to this. The reflection came. Okay. And what I was told is that when the reflection came, it stood at a distance of around 10 to 15 feet. Okay. And he was told, the ICS officer was told, कि दो conditions हैं before, I mean, if you agree, then only we can do this for you. कि पहला, आप उससे बात नहीं करेंगे, और दूसरा, you will not react and, go and hug him. After all, you're the father. If you see, you will try to run and, hug him once. You cannot do that. आपको distance से जो भी करना है, quietly आपको देखना है. रिफ्लेक्शन कहाँ, क्या सरफेस पे था? वाटर में था, मिरर में था? In the room जहाँ वो बैठे थे. Okay. So it was going to take shape. Yes. So what he saw was an image, and the image was hazy, but looked quite like his son, and it was wearing the naval uniform which his son used to wear. Oh my God. Uniform. Okay. And same size, physique, everything similar. लेकिन जो फेस था वो 100% जो मेरे बेटे का ही फेस है वो नहीं बोल पाए, लेकिन बोले कि वो मेरा बेटा ही था, because I could see him standing. And बेटे का जो मैनरिज्म था, जो the way his body language was, it said that his hand was raised slowly and he was trying to tell his father कि I'm fine, don't worry, मैं एकदम ठीक हूँ. It seems उन्होंने बात तो नहीं की, just बोला, मैंने through body language. Okay. तो ये थी उनकी मीटिंग, और वो देख के ये ICS ऑफिसर was stunned. वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये उनके सामने हो रहा है. And this happened for a few minutes, and after the few minutes that thing went away. Now what thing I can't explain, but that went away. और जब वो चली गई तो उसके बाद इन्होंने अपना सर उस तांत्रिक जी के पैरों में रख दिया. यानी he just gave himself in after seeing this. और तांत्रिक महोदय ने उनको बहुत आशीर्वाद किया और कहा कि अब तुम जाओ, तुम तो मिल लिए, तुम्हारी जो इच्छा थी मैंने पूरी कर दी. But somehow the tantric started liking this man, because probably the man was honest, the man kept his word of not talking, not touching, and everything went fine. So un tantric mahoday shayad he met this gentleman a few more times later on, and what conversations they had I really don't know, but I was told that later on the tantric mahoday gifted this officer a box. एक बक्सा उनको दिया गया, and was told कि ये बॉक्स आप अपने साथ रखिए, अगर जिंदगी में कभी भी फिर बहुत जोर से इच्छा हो कि आप बेटे से एक बार फिर 2-3 मिनट के लिए मुलाकात करना चाहते हैं, तो आप इस बक्से को इस्तेमाल करिएगा, लेकिन पर्सनल, नॉट विद एनीवन एल्स. और जब वहां पे कोई और नहीं रह सकता है, he has to be alone. He has to use it. No one else can use it. Okay. और जब आप उनसे मिल लें, तो आप ये बॉक्स को नदी में इमर्स करें, क्योंकि वो जानते थे इलाहाबाद से हैं, तो वहां पे तो नदी, गंगा नदी है, तो उनको बोला गया आप इसको अल्टीमेटली गैंजेस में इमर्स कर दीजिएगा, घर में ज्यादा दिन मत रखिएगा, क्योंकि these sort of things bring sorrow. तो ज्यादा मत रखिएगा, अगर कभी इच्छा हो देख लीजिएगा, फिर इसको आप गंगा में छोड़ दीजिएगा. डू नॉट हैंड ओवर टू समवन एल्स. ये उनको बोला गया. अच्छा. अब ये तो बक्सा लेके भाई साहब कुछ दिनों बाद नेपाल छोड़कर इलाहाबाद वापस आ गए. नेचुरली ऑफिशियल टूर पे गए थे. So this was about this entire incident involving the elder son. Now the life went on, and the second son was studying, and he grew older, and a few years rolled by.
और ऐसा करते करते it was 1944 had gone with the past, whatever I said, 1944 was gone over. और इतने में धीरे धीरे गुजरते गुजरते टाइम इतना गुजर गया कि फिर एक दुर्घटना उस इलाहाबाद शहर में इन परिवारों के बीच हो गई. And this दुर्घटना took place, this accident took place in my nanima's house, माने my husband's nanima's house. That is my mom-in-law's बाबा बाटी, पिताजी के घर में. तो ये घटना ऐसी हुई कि मेरे हस्बैंड के एक मामा जी उन दिनों में जिनकी उम्र थी 16 साल, 16 years, he passed away, he died. Just so like that. This family, now what had happened was कि उन दिनों में ना यंग बॉयज क्या करते थे, थोड़ा भी थक गए, ज्यादा पढ़ लिया या घर का कुछ काम कर लिया तो मम्मी को बोले, मम्मी हम थोड़ा नदी से नहा के आ रहे हैं. It was something very common. The boys used to do that. And this fellow told his mother कि I'm feeling a little tired, मैं थोड़ा नदी से नहा के आ रहा हूँ. And he used to go. He was a very good swimmer and he used to go. तो ऐसे जैसे रेगुलरली जाते थे, उन्होंने आज भी कहा कि मैं थोड़ा स्विम करके आ रहा हूँ. तो माँ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उनको छोड़ दिया, वो चले गए. चले तो गए, अब लौटे नहीं. शाम होने को आई, सारे घर के परिवार के लोग ढूंढने निकले, कहीं भी किसी को पता नहीं. पुलिस में बोला गया, काफी ढूंढ ढांड के खोजबीन जारी. आखिर में कुछ घंटों के बाद नदी में एक शव मिला. शव को निकाला गया. तो जब इस शव का मुआयना किया गया तो पता चला कि इट वाज मामा, इट वाज माय मदर-इन-लॉ's brother. Terrible, terrible for any parent. My goodness, living hell. Absolutely. तो जब उस बॉडी को देखा गया, मेरी नानी माँ ने बॉडी को देखा, तो you can understand a mother seeing son's body lying in front and the body was swollen क्योंकि काफी घंटे पानी में थी, और जो सर था वो फटा हुआ था. Absolutely, broken skull, एकदम बहुत भयानक तरह से फटा हुआ सर था. तो नानी माँ को ये दुख नहीं हो रहा था कि बेटा गुजर गया. उनको ये दिमाग में बस एक ही प्रश्न खाए जा रहा था कि इसको क्या हुआ था जो इसकी ये हालत हो गई, क्या हुआ पानी में. जो इसका मतलब वो बस डूबे नहीं थे, he was injured as well. It was not as if he had just drowned. I mean, absolutely. He was injured and how this had happened, no one knew. किसी के पास कोई जवाब नहीं. तो आखिर में नानी माँ बहुत दुखी हो गई. लास्ट राइट्स हो गए, बेटा चला गया, एंड एवरीबडी वाज वेरी डाउन इन द फैमिली. तो आखिर में नानी माँ को ध्यान आया नेबर्स का. Dear listeners and viewers, we'll stop here because we will hear the rest of Dolly's story in the second part where Dolly goes, "Kaun hai?" Stay connected.